Hello, Uttara. Good morning. Hello. Hello, Uttara. Hello, Anil. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. And where is Uttara? Uttara Deshmukh. मैडम ज्वाइन हो गए सर. Am I audible? Yeah, you are audible, Uttara. When you are going to start? मेरा आवाज आ रहा है क्या? देखो एक बार. सुनना सुभाषिश, इसको थोड़ा सा ये जो है ना इधर से नहीं, ये पीछे से ये जो है ना Uttara. Uttara. Hello, Uttara. Uttara, can you hear me? मुझे सुनाई नहीं दे रहा. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Are you going to now? When you are going to start? Waiting for someone. अभी आप बात करो, अभी प्रेजेंटेशन होगा, अभी 10:30 की बात. हेलो.
मुझे तो नहीं सुनी। मैम बोल रही थी मेरा साउंड का थोड़ा इशू है, चेक करता हूँ। Good morning, Anil sir. Am I audible? I think I have a sound issue. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning. Is any problem? No, sir. I thought I was not audible, so I was just testing it. Okay, no problem. Please go Okay. ahead. Sir. VC sir is coming for today's event? Sir, he said that he will join and he will give at the end, after completion of our session, he will give the concluding remarks. Okay, no problem. Yes, sir. Hello. Uttara, you can start. No problem. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. I think 90 people have joined. So shall we start? Yes, yes. No problem. Good morning, everyone. Honorable Vice Chancellor Dr. Shashank D. Dalvi sir, Research Director Dr. Sabita Ram Madam, Convener of Institution Innovation Council Dr. Raman P. Yadav sir,
All the external members, Dr. Becky Thomas, Dr. Nitin Shukla, and Dr. Paresh Bhanushali sir. Internal members, Dr. Rita Khadkikar ma'am, Dr. Kavita More, all the heads of the institutions from Navi Mumbai and Aurangabad, faculty of Navi Mumbai and Aurangabad, students from all colleges from Navi Mumbai and Aurangabad. I would like to welcome all the attendees for the first quarter activity of the Institution Innovation Council MGM IHS for the year 2022, organized by MGM Institute's University Department of Prosthetics and Orthotics. Regarding the Institution Innovation Council for the newly joined students, Institution Innovation Council is an initiative of MHRD, that is Ministry of Human Resource and Development, for selected higher education institutes, and a network of these Institution Innovations Council is established to promote innovation in the institution through various modes of leading to innovation promotion and ecosystem in the campuses. Necessity is the mother of invention. This is a well-known proverb, and it means that the primarily driving forces for most invention is a need. And this has been proven by our today's guest, Mr. Anish Karma. Mr. Anish Karma is a social innovator and startup founder for Aumesh Tech Private Limited. Aumesh Tech Private Limited is a society of innovation and entrepreneurship specialized in the field of design, development, manufacturing, and distribution of assistive devices, incubated in SAIL and IIT Bombay. Aumesh Tech Private Limited has won a BIG grant from BIRAC, which is a unit of Government of India, and it has got funds also from Infosys. He has worked with BETIC and has received awards also from BETIC. Regarding the KAFO, now what is KAFO? For BPO students, it is very known, well-known terminology. KAFO is a knee, ankle, foot orthosis, and it is given as an external supporting device which is for the patients with weak musculature. Those weak musculature can also be in various conditions like neurological, neuromuscular condition which are involved in polio, paraplegia, or cerebral palsy, spina bifida, etc., etc. There are various types of KAFOs. Mr. Anish Karma has developed a MASC KAFO, that is Mechanical Actuated Stance Control KAFO, which focuses on providing a better alternative to existing orthotic calipers. KAFO means orthotic caliper also it is called in a general terminology. And he has developed such type of KAFO, which is an alternative to the existing calipers, and by automatic locking and unlocking of the knee joints according to the stance and swing phase of user to provide lower limb stability and mechanical stability. Its features are the various features for KAFO which he has developed. It is light in weight. It requires less forces as compared to the currently used KAFOs. It is very much compatible with any kind of footwear. It has got 135 degrees of flexion angle in the knee joint, which is similar to the anatomical knee joint, and it is very much cost effective as well as compared to the KAFOs which are available in the markets. So we will listen his story from his own words. Patients ki kahani, patient ki zubani. Also would like to inform that Mr. Anish and his wife, they are polio patients, and himself he was having some troubles in the existing calipers, so he has developed his own caliper. So we'll listen from Mr. Anish Karma. Welcome, Mr. Anish Karma. Mr. Anish Karma.
हैव यू ज्वाइन? आप ज्वाइन किए हो? यस सर, आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, आपको आवाज आ रहा है? यस अभी आ रहा है। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जी, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा तो चलेगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलेगा सर, आप जिस हिंदी में लैंग्वेज चलेगा। में कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। क्योंकि मुझको इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। नो इश्यूज। स्लाइड मैम आप, मैं एक मिनट देखता हूँ स्लाइड। हाँ, स्लाइड आया क्या? हेलो? नहीं सर, नहीं आया? नहीं। आप चाहे तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप कर हाँ, आप शेयर कीजिए, शेयर स्क्रीन। पता नहीं मैम, एक्चुअली काफ़ी दिन पहले किया था, अभी बहुत ओके दिन से। ओके, मैं यहाँ से करती हूँ सर, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो एक मिनट। हम्म। आकाश, नहीं। यस जी, अभी ठीक आ रहा है? नहीं, मेरा यस स्क्रीन आ रहा है ना? मेरा नहीं नहीं, मैंने शेयर किया है सर ऑलरेडी। ठीक है मैम, ठीक है। इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? हाँ, यस यस यस। ओके, आप जब भी आपको नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट स्लाइड करनी है, तो आप मुझे नेक्स्ट बताते जाइए। जी 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 जी। मेरा नाम अनीश कर्मा है। मैं अभी 2018 से बैटिक आईआईटी बॉम्बे में काम करता हूँ। मैं और मेरी वाइफ सैनाज जी, हम दोनों पोलियो पेशेंट हैं। तो अभी हमारा जो जर्नी है हमारे घर से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली हम पोलियो पेशेंट हैं दोनों ही, और हमने ऐसे लाखों लोगों को देखा है। तो हमारा जो, फिर हमने आईआईटी बॉम्बे में अपना जो स्टार्टअप, मतलब बैटिक में हमने जो रिसर्च किया इसके ऊपर, और फिर हमें वेंचर सेंटर से हेल्प मिला। हमारा बीआईजी पार्टनर है, और साइन आईआईटी बॉम्बे में इनक्यूबेटेड है। तो आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में पोलियो पेशेंट हैं, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक एंड और अलग अलग तरह के मूवमेंट डिसेबल्ड हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड। मैम अगला स्लाइड, नेक्स्ट। यस सर। दिख रहा है सर, मैंने चेंज किया है। नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, यस यस। तो मेरी वाइफ ने और हमने जयपुर फूट यूज किया है दिल्ली से। और ऐसे ही हम डोप्लर कैलिपर यूज करते हैं, और हम एहसान मानते हैं जयपुर फूट का और आप लोगों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि एक डोप्लर कैलिपर जो हमारे देश में है वो एक यूज करने के लिए हमें चलने के लिए हेल्प मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम उसको पहनकर चलते हैं तो हमको जो है मूवमेंट नहीं मिल पाता। और इससे एक बड़ी चीज़ है कि हम अगर हमारे गांव में या हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आज भी इंडियन टॉयलेट, नॉर्मल टॉयलेट यूज होता है। तो क्या है कि वहाँ पर इंसान जो है वो नीचे नहीं बैठ पाता। बहुत से टीचर हैं, बहुत से अपना काम करते हैं, वो जो है नॉर्मल आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, मेरी मिसेज को भी आती थी, हमको भी आती थी। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही थी कि उसको पहन के हम साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो हमको जो डॉपलर कैलिपर वो मिलता है, हम यूज करते हैं, और उसका फ़ायदा होता है हम लोगों को।
कि भाई चलो हम हाथ लगा के चलते हैं या हम नीचे खिंचड़ के चलते हैं, तो एक पेशेंट को चूँकि मैं खुद यूज़र हूँ, तो मुझको पता है कि एक पेशेंट को सीधा होके चलने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब वो डॉपलर कैलिपर या कोई भी नॉर्मल कैलिपर यूज़ करता है। बट हमारे इंडिया में जितने भी लोकोमोटिव डिसेबल्ड हैं, चाहे वो सीपी के हैं, चाहे वो पोलियो पेशेंट हैं, उनमें 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनके पैर में 1+ पावर या 2+ पावर होता है। तो उन लोगों के लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमको एक डायनेमिक मूवमेंट वाला हमको कैलिपर चाहिए। मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ और जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमको तो फेस हो रही थी कि भी हम टॉयलेट में नहीं बैठ पाते, हम नीचे आलती-पालती मार के नहीं बैठ पाते। तो इसलिए जो है हमको ये प्रॉब्लम जो है दिखाई दी। मैम नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। सर थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। एक 2 मिनट का हम मैं आपको ये करती हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन the IIC convener Dr. Raman P. Yadav to give a word to all the dignitaries. Dr. Raman P. Yadav sir. No problem. Start with this. Good morning to everyone, and welcome to today's speaker, Anish Karmaji. Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Sir, President of IIC, all the members of IIC, stakeholder of the IIC. We are privileged. We have today the speaker like the Anish Karmaji as a social innovator. And if you see this, the effort of Institution Innovation Council, we are trying to call or trying to manage a person who really did some innovation idea that converted into the innovation. And if you see this this council effort, taking like a uneasy type of person to this platform, the whole idea is this inspiration that gives if the journey, if you narrate your success through the journey, or if the journey says the micro level problems and the solution. And if you see this, it's a long list of the entrepreneurs in this country and globe. One of the example is recently, if you see the Tesla electrical vehicles and SpaceX by the Elon Musk, Jeff Bezos, that is case of the Amazon, and to the in Indian context like J.R.D. Tata ji, Dhirubhai Ambani, the Ghanshyam Das Birla ji. And if you see this, the unique thing in the Indian thing, the India pre-independence and after the independence, you can imagine the J.R.D. Tata started its entrepreneurs culture before independence, and still it is continuing. This type of the policy, the government policy also influence. Today's policy are supporting startup, and we are privileged in this direction. So today's speaker, I welcome to once again Anish Karmaji to give his speech. And I can tell you in the Hindi, इस तरह के लोग जो रास्ते को देखा हो, मंजिल को देखा हो, वो अतीत का गौरव गायक होता है, वर्तमान का सूक्ष्म दृष्टा और भविष्य का कुशल सारथी. Welcome to the IIC MGM IIS. Thank you. Thank you very much for such a kind words, sir. I would like to call upon Dr. Savita Ram, madam, who is a research director, MGM IHS. Madam, are you there? I think. No issues. No I will. problem. Go ahead. Okay, sir. So Anish ji, आप please continue कीजिए.
मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट। Is my screen visible? Screen is visible? Okay. Anish ji? यस यस यस, आवाज आ रहा है? Yes, आप audible हो और आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस यस। Yes sir, please continue. हाँ, तो आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हैं, बट मैं ओनली 12 पास आउट साइड, नो इंजीनियर, नो डॉक्टर, नो कोई टेक्निकल पर्सन, ओनली एक पोलियो पेशेंट हूँ, एक यूजर हूँ, एक नीडेड हूँ कि भाई हमको एक कैलिपर हम यूज करते हैं। और बट हमने देखा कि हमको जो है एक डायनेमिक मूवमेंट वाला कैलिपर हमको एक गवर्नमेंट बॉडी में या फिर कहीं पर एनजीओ में वो नहीं मिलता है, नॉर्मल कॉस्ट में भी नहीं मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलता है। तो फिर हमने खुद ने डिसाइड किया कि हम, देखो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो डॉबलॉक कैलिपर है वो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और या फिर आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 10,000 से 12,000 15,000 में मिलेगा आपको, ठीक है ना। बट जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। जो दूसरी साइड में है आपका डायनेमिक कैलिपर है, वो हाई टेक है, एफिशिएंट है, अफोर्ड मतलब कंफर्टेबल है, काफ़ी लाइट वेट है और वो चलने में हेल्प करता है। बट हम एक नॉर्मल इंसान जो है, एक हमारे देश में 80% जो जनता है, आप जानते हैं कि वो एक मीडियम इनकम कमाती है, तो वो एक ना हाईटेक 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का नहीं ले सकती, 50,000 का भी नहीं ले सकती, मैं खुद नहीं ले सकता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही लाखों लोग हैं। मैं मानता हूँ कि पोलियो पेशेंट कम हो गए हैं, लेकिन अभी 1980 के जो लोग हैं, मेरा 82 का पैदाइश है, अभी भी ऐसे लाखों लोग हैं जो डोपलर कैलिपर यूज कर रहे हैं, या जिनको पोलियो है, सीपी है, स्पाइनल इंजरी है, जो जो और भी अदर चीज़ें हैं। तो हमको एक एक डायनेमिक कैलिपर नहीं मिल पा रहा है एनजीओ या गवर्नमेंट बॉडी में, या फिर कहीं भी एक नॉर्मल कॉस्ट में नहीं मिल पा रहा है। तो हमने खुद ने डिसाइड किया, ये गैप था, एक नीड थी कि भाई हमको एक ऐसा कैलिपर चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के जो गरीब लोग हैं या नॉर्मल पेशेंट हैं उनके लिए चाहिए। तो हमने खुद डिसाइड किया और हमने अपना घर पे ही काम स्टार्ट किया। मैम नेक्स्ट स्लाइड। सर दिख रहा है आपको? इसकी शुरुआत, हाँ हाँ मैम, इसकी शुरुआत ऐसा होती है कि हमारे पास नीड थी। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरे अंदर एक गॉड गिफ्ट है कि मुझको नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशन, नए नए आइडिया, जो मैं अपनी डायरी में लिखते रहता हूँ। तो मेरे पास नीड भी थी और मेरे पास में एक आइडिया आया, गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए, कि मैं इस चीज़ पे काम करूं। तो मैंने अपने घर के पास में ही, आसपास में से कबाड़ा इकट्ठ, जो कबाड़ा होता है या फिर हमारे घर में जो चीज़ें पुरानी पड़ी होती हैं उनको ढूंढा, साइकिल दुकान पर से चैन लिया, गरारी लिया, उनको काटा, वेल्डिंग करवाया और वेल्डिंग की दुकान पर जाकर उसको एक नॉर्मल एक जुगाड़ कैलिपर बनाया। पहले कागज पर बनाया, फिर उसको लोहे और प्लास्टिक का बनाया। तो उसको हमने ट्राई किया, फिर हमने उसमें बहुत सारी कमी देखी, फिर उसको तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर ट्राई किया। इस तरह से हमने 10 15 20 बार उसको बार बार ट्राई किया, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्वेंशन एक दिन में नहीं बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट। Yes. Yes sir. Is it visible? यस यस। तो 2015 से पहले मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था, और 2015 में फिर मैंने कई प्रोटोटाइप बनाए, यूज किया,
फिर मैंने एनआरडीसी को प्रेजेंट किया अपना, जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली में सेंटर है भारत सरकार का, जहाँ पर आपके कोई भी आइडिया को या आपके प्रोटाइप को या फिर इन्वेंशन को वो पेटेंट फाइल कराने में हेल्प करते हैं। मैंने वहाँ पर कई चक्कर काटे, दिल्ली में इसका सेंटर है, वहाँ पर मैंने 1, 2, 10 बार चक्कर काटे। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे प्रोटाइप को पेटेंट फाइल के लिए अप्लाई किया। मैं उनका एहसानमंद हूँ आज भी। पेटेंट होने के बाद में मुझको कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये चीज़ हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2015 से लेकर 2018 तक जो भी पैसा था मेरे पास में वो मैंने इसमें लगाया प्रोटाइप बनाने में और उसको, लेकिन और जहाँ भी दिल्ली में, नोएडा, गाजियाबाद, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया। मेरा एक बार एमएससी में से भी प्रोजेक्ट पास हो गया, बट 5 लाख का फंडिंग पास हुआ, बस आज तक नहीं मिला। हमने कॉलेज में भी डाला इंस्टीट्यूट में, बट उन्होंने बस खाली प्रोजेक्ट को डाला, कोई हेल्प नहीं करी। मैंने उनको ये भी बोला था कि आप मेरा पेटेंट फाइल ले लो, मेरा पेटेंट ले लो, डिजाइन ले लो, आप मुझे एक जॉब दो छोटा सा काम करने के लिए। बट पता नहीं उनके लिए क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया। पर ये मैं मानता हूँ कि जो भी होता है वो ईश्वर, जो कुदरत है, सृष्टि है, वो अच्छा करती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझको आईआईटी बॉम्बे जो एक बहुत बड़ा डायमंड है वो मुझको नहीं मिल पाता, जो मैं यहाँ पर आके मुझे मिला। तो 2018 तक मुझको, मेरे पास में जो पैसे थे, जो जॉब था मेरा वो छूट गया था, पैसे भी नहीं थे, सब कुछ मतलब बहुत दिक्कत में था। मेरे माँ बाप थे, उनके लिए खर्चा चाहिए था, मुझके लिए, मेरी वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, बट जेब में खाली था। फिर भी मैं लगा रहा। लोग बाग काफ़ी प्रेशर डालते, रिश्तेदार डालते कि आप क्या कर रहे हो, ये पागलपंती है, ये है वो है। बट एक जिद थी कि हमको ये करना है, हमको खुद के लिए नहीं तो कम से कम जो हमारे लाखों लोग हैं हमारे जैसे, उनके लिए हमें करना है। मैं 1-2 लोगों से मिला, 2-4 पी&ओ कंपनी, 1-2 कंपनी से मिला। एक पी&ओ कंपनी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने उनको अपने पेटेंट दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो बोलते हैं इंडियन पेटेंट्स आर नॉट गुड। ये वर्ड मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे इंडिया के जो पेटेंट है या डिज़ाइन है या इन्वेंशन है वो अच्छे नहीं होते। उन्होंने मुझे जर्मनी के बड़े बड़े कंपनी के वो यूज करते हैं, आज भी वो बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो वर्ड कहा ये मेरे को लगा। इस वर्ड को मैंने वहाँ पर मैंने कुछ नहीं कहा ज़्यादा। मैं बाहर निकला और मैंने ये डिसाइड किया उस दिन, ये वचन लिया कि ये मैं कुछ भी ये मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गुड हो या ना हो, लेकिन मैं ये करके रहूँगा। क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे देश के लोगों ने, ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में आर्यभट्ट जी हुए हैं, अब्दुल कलाम जी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। बट ये कि हम उस चीज़ को उस प्लेटफार्म तक लेके नहीं जाते। ये हमारी गलती होती है या फिर हमारी कमजोरी समझ लो। लेकिन हमारे देश में साइंटिस्ट और सब कुछ हुए हैं। तो वो मैंने डिसाइड किया कि मैं करके रहूँगा और मैं चलता रहा। मैम नेक्स्ट स्लाइड। एक दौर ऐसा भी आया कि घर में भी प्रॉब्लम हो गई थी पैसे की, बहुत सारी दिक्कत होती। बच्चा बोलता था कि पापा स्कूल जाना है, तो मैं उसको ये बोलता कि बेटा थोड़ा सा और सब्र कर, सवेरा निकलेगा। क्योंकि आप अगर कोशिश करते रहोगे तो सवेरा आएगा। और मैं लोगों को फ़ोन करता रहा, मिलता रहा, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, जहाँ भी मतलब कोई मिलता मेरे को मैं जाता। कुछ लोगों ने हेल्प भी करनी चाहिए, लेकिन वो आईसीएमआर की मैडम है एक, डॉक्टर नीता कुमार, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट लिखा, आपको डीएसटी में डाला, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्होंने हेल्प करी। कुछ लोगों ने हेल्प भी करी, लेकिन हमारा मामला नहीं बन पाया। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, बट मैं खड़ा रहा कि हमको करना है। फिर हमने बैठक में प्रोफेसर रवि जी को कॉल किया, उनका नंबर मुझे कहीं से मिला और उनको कॉल करता रहा, उनसे कांटेक्ट में रहा और फिर यहाँ पर आने का मौका मिला। फिर मुझे 2018 में जनवरी में यहाँ पर आया। उन्होंने लैब में हमारे प्रोटोटाइप देखे, सब चेक किया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ये रास्ता देते हैं बैटिक का आगे बढ़ने के लिए। और मैं उनका आज भी एहसानमंद हूँ। और मेरी लाइफ में अगर कोई गुरु है सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ तक पहुँचने वाला है, वो प्रोफेसर रवि जी हैं, बैटिक आईआईटी बॉम्बे। जी मैम नेक्स्ट स्लाइड। हमने यहाँ पर आकर कई नेक्स्ट वर्जन बनाए। ये फर्स्ट वर्जन मेरे हाथ का बना हुआ है, मतलब मेरे घर पे बना हुआ था। और भी कई चीज़ बनाए थे जो सब टूट फूट गए। फिर ये वर्जन 2 हमने बैटिक में आया बनाया, वर्जन 3 बनाया, क्योंकि वो थोड़े भारी थे, वजन ज़्यादा थे। और इस तरह से जो है हमने कई वर्जन बनाए। अभी ये हमारा अपडेट प्रपोज्ड वर्जन है। इसमें हमने कई सारे फीचर लगाए हैं।
जो पेशेंट को चलने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हमने जो प्रोटाइप बनाए हैं, डिजाइन बनाया है, वो ऐसा है कि आप फुल फ्लैक्शन मतलब नीचे बैठ सकते हैं इंडियन टॉयलेट में या नीचे नॉर्मल। और चलने में ये इस तरह से हेल्प करता है कि जब आप हील स्ट्राइक करते हैं, जब आप स्टांस फेस में जाते हैं, तो ही स्ट्राइक होने के बाद में वो मैकेनिज्म में जो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो लॉक हो जाता है, जिससे इंसान को खड़े होने में हेल्प मिलती है। ठीक है, जिससे लेग को स्ट्रेंथ मिलती है, और नो बकलिंग नहीं होता है। और जब हील पे से प्रेशर हटता है तो वो अनलॉक हो जाता है। तो लॉकिंग अनलॉकिंग ऑटोमेटिक होता है। उसको पहनकर हम साइकिल भी कर सकते हैं और नॉर्मल जो अपने वर्क हैं वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो है मैनुअल जो ड्रॉप कैलिपर है, वो भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे कहीं भी, तो वो भी 10, 12, 20 हज़ार तक, 10 से और 20 हज़ार की रेंज में मिलता है। तो और जो प्राइवेट सेक्टर के जो हैं, आप जानते हैं बेकर है, ऑटोबुक है, उनके जो कैलिपर हैं वो अच्छे हैं, बट वो इतने महंगे हैं कि हम नॉर्मल लोग नहीं ले पाते। तो हमने डिसाइड किया कि हम 20 हज़ार की कॉस्ट में, 15 हज़ार की कॉस्ट में, 20 हज़ार की कॉस्ट में हम एक स्टांस कंट्रोल, एक बेटर चीज़ हम बनाना चाहेंगे, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये हमने जो है पेटेंट फाइल किया था 2018 में। पहला पेटेंट में मैंने अपने नाम से किया था। दूसरा जो पेटेंट है हमारा स्टांस कंट्रोल वाला, ये हमने आईटी बॉम्बे ने किया, और इसमें अभी हम और नए फीचर ला रहे हैं, जिससे हम अपने जो देश को एक नई टेक्नोलॉजी हम दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि हमारे इंडिया में जो है पोलियो पेशेंट भी हैं, ऐसे ही लाखों पेशेंट हैं अभी भी। और मैंने अभी देखा, मैं पुणे में गया था, एक वहाँ पर स्कूल है स्पेशल चाइल्ड का, उसमें पोलियो, सीपी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और मतलब अलग तरह के पेशेंट थे। ऐसे बच्चे थे जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मुझे पता है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो उन बच्चों को दर्द है, जो हमारे देश में जो जो बच्चे हैं जो चल नहीं पाते, जिनको कैलिपर नहीं मिल पा रहा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का, अभी भी ऐसे बहुत से लोग छूट जाते हैं। तो हमारा मोटो है कि हम उन लोगों को तक ये चीज़ पहुंचानी है, गांव-गांव और जिला-जिला हमें पहुंचानी है। तो हमारे ये चीज़ में है कि जो वैल्यू प्रोपोज़िशन हमारा ये है कि प्रोसेसिंग अथॉरिटी के लिए बेटर फंक्शनैलिटी है, ठीक है? एनजीओ और गवर्नमेंट के लिए है कि वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और बहुत कंफर्ट मतलब सस्ता है। और जो है ये पूरा बैंड 135 जो है ये बैंड हो सकता है, 120 केजी को ये झेल सकता है, और कम से कम वेट हम इसमें रखेंगे 1.3 या 1.5 तक इसमें केजी में रहेगा। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अपने बैटिक आईआईटी बॉम्बे में हमने ये खुद से, मतलब हमने इंजीनियरिंग के साथ मिलकर, बैटिक के साथ मिलकर ये डिजाइन किया। हमने वहाँ पर पेशेंट मतलब वॉलेंटियर को बुलाया, उनसे फीडबैक लिया, उनको पहना के देखा, उनमें जो उनकी कमियाँ आई थी उनको हमने चेक किया, फिर अपडेट किया। ऐसे ही हमने मतलब कम से कम 10-15 प्रोटोटाइप बनाए और उनसे फीडबैक लिया। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने जो आईडी में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमने उनको शो किया। तो आप देख सकते हैं कि इधर सबसे राइट साइड में जो ब्लू शर्ट में जो हमारे डॉक्टर रुपेश जी हैं, बैटिक के मैनेजर, जो बहुत हेल्प करते हैं बैटिक को आगे बढ़ाने में। और जो राइट साइड में जो वाइट शर्ट में है, वो हमारे पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल कोलकोटकर जी हैं, जो हमारे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को देखा और फीडबैक दिया, और हमें हिम्मत मिली आगे बढ़ने में। और डॉक्टर राजीव मेहता जी हैं, जो आरएनसीटी के डायरेक्टर हैं, वो इन सब चीज़ों को आगे हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर लव सिंह जी हैं, जो हमें बिजनेस में काफ़ी हेल्प करते हैं, आगे गाइडेंस देते हैं। और प्रोफेसर रवि जी हैं, जो हमें हर तरह की मेंटलिटी, फाइनेंशियली, मतलब बैटिंग में जब मैं था, और गाइडेंस, टेक्निकली सारी चीज़ें हमें वो हेल्प करते हैं, और आज भी हेल्प करते हैं कि इस चीज़ को हम लेके आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये हमारी टीम है। हमारी टीम में मेरी वाइफ है सनाज, और आलिया बेग जी हैं, जो हमें इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने में और आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रुपेश जी हैं, जो हमें गाइड करते हैं। और डॉक्टर समीर देसाई जी हैं, केम पुणे से, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हमें गाइडेंस देते हैं। डॉक्टर तारिक सलीम जी हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और हमारे साथ में आकाश जी हैं और डॉक्टर नेहा कुमारी जी हैं, जो हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं। IIT कानपुर में एक अवार्ड जीता है, BIG ग्रांट हमें भारत सरकार से मिला है। बिग आइडिया समिट हमारे मुंबई से एक अवार्ड मिला था। NCPDP एम्फेसिस अवार्ड हमें मिला था दिल्ली में, और इन्फोसिस फाउंडेशन का इन्फोसिस सोशल आरोहण अवार्ड हमको मिला है। तो ये इन लोगों ने हमें हेल्प करी है, हम इनके एहसानमंद हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें साइन IIT बॉम्बे में हमारा जो स्टार्टअप है वो इनक्यूबेटेड है, इन्फोसिस से हमें हेल्प मिली है। RN सिटी है, मोनिटरी इंडिया है, वहाँ से हमें आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। नीना फाउंडेशन है और सितारा है और उम्मीद फाउंडेशन है। क्योंकि हम अपनी चीज़ को कहीं ना कहीं अटैच करके NGO से, गवर्नमेंट बॉडी से या प्राइवेट सेक्टर से हम उनको एक लो कॉस्ट में देना चाहेंगे। तो मैं एक वीडियो है, मैं उसको जो है चालू कर सकते, आप चालू कर दीजिए, इस लिंक को चालू कर दीजिए। वीडियो चालू हुआ क्या? सर दिख रहा है वीडियो? नहीं नहीं मैम, नहीं दिख रहा। सॉरी, अच्छा, आई थॉट मुझे दिख रहा है। एक मिनट। सभी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। शायद अभी चालू नहीं हुआ। कंट्रोल क्लिक करके उसको कर सकते हैं। नहीं नहीं। सर 1 मिनट कर रही हूँ। हम्म। लिंक पे कंट्रोल करके क्लिक कर दीजिए, चालू हो जाएगा। या आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं चालू कर देता हूँ। सर इज इट विजिबल? अभी दिख रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा मैम। यस सर, दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, वेट 1 मिनट सर। Please, अभी shooting. हाँ, Stop sharing. प्ले झाली आहे फोन माझ्याकडे पण प्ले झाली आहे. सर अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक नहीं। आप अनीश को लिंक दीजिए और अनीश ट्राई करेंगे। आप हाँ, शेयर एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। हाँ
अनिश जी आप ट्राई कीजिए। स्लाइड ओपन। स्लाइड स्लाइड दीजिए मैम। डॉक्टर उत्तरा जी स्लाइड दिखाइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमने 2-3 बार कोशिश की। एक मिनट। इधर से हो नहीं रहा है। आप कोशिश कीजिए मैम, लिंक पे कंट्रोल करके और क्लिक कीजिए, एक या दो बार। Go to this link. हम्म आप पहले कंट्रोल दबाइए, फिर उस पर Link जाकर क्लिक कीजिए, एक या वन या दो बार। देखिए चालू होगा शायद। control। दो बार क्लिक कीजिए। ये सब बहुत ही अच्छा वीडियो है बट चालू नहीं हो रहा है। शायद दो बार क्लिक करके देखिए, कंट्रोल करके। नहीं सर चालू नहीं हो रहा है। नो इश्यू सर। मैंने मतलब मुझे दिख रहा है बट नहीं। ठीक है, नो इश्यू सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सच। Listen, Uttara, Yes, sir. can you summarize his video into the simple version so that message will go? आप उनका जो उन्होंने जो कुछ भी अच्छा काम किया है उसमें यस सर। उनकी विशेषताएं बताइए। ओके सर, एक्चुअली वीडियो में उन्होंने यही बताया है दैट ट्रेडिशनल से एडवांसमेंट में कैसे आए हैं एंड द पेशेंट्स व्हिच आर यूजिंग दिस calipers, the caliper which is made by Mr. Anish Karma, the patients, various patients, they are using the calipers and they are walking in a very smooth pattern and smooth manner. The patients which were finding difficulties in the traditional KFO, with his KFO they are walking in a smooth manner. So this is a summary of that video. मैम एक काम हो सकते हैं कि आप Yes, sir. यूट्यूब पे जाइए, उस पर डालिए अनीश कर्मा मैस केफो, तो ये वो आ सकता है। आप उसको शेयर कर सकते हैं क्या यूट्यूब पे जाकर? सर मैं कोशिश करती हूँ। अभी तो मेरा थोड़ा ये टेक्निकल यहाँ से सपोर्ट नहीं करेगा यूट्यूब के लिए, तो मैं शेयर कर दूंगी सर, सबके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। आप स्टूडेंट चाहें तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर, स्टूडेंट्स वांट टू आस्क क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बात पूछनी है जी, तो क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं ओनली एक 12 पास बंदा हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर लेवल के बंदे हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, जरूरी नहीं है कोई इन्वेंशन करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत है, नहीं। नीड की जरूरत है, जितना नीड आपको लगेगा उतना ही आप ज़्यादा इन्वेंशन मतलब कर पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है, देखो एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आईटी में 3 साल काम किया है, अभी भी मैं आईटी में जाता हूँ, काम करता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर जो भी इंजीनियर हैं या जो भी बहुत से डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं बड़े बड़े,
उनमें स्टूडेंट ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमको एक बड़ी कंपनी में 50,000 की या 1 लाख रुपए की या पैकेज लेना है, हमें 10 करोड़ का पैकेज लेना है और हमें आराम से ज़िंदगी जीनी है। मैं समझता हूँ कि आराम की ज़िंदगी मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई इन्वेंशन करता है, इंटर बनना चाहता है या उसको आगे बढ़ना चाहता है, तो जो सपने होते हैं, जो नींदें होती हैं, वो उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके लिए पूरा फोर्स चाहिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो तो हमारे इंडिया में सब कुछ है, हमारे इंडिया में टैलेंटेड है, पैसा भी है, बंदे भी हैं, मैन पावर भी है, स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी जो थिंकिंग है वो इस तरह की है। मेरे साथ का जो इंजीनियर था, वो खुद आज दुबई में जाके करोड़ों का पैकेज ले रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप लाखों करोड़ कमाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, किसी भी इनोवेशन की या अपने देश में इनोवेशन को आगे बढ़ाने की, या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को नीड है, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की अगर ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तो बाहर का आके कोई भी हमारे देश की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। हमारे आस-पास में, हमारे घर में, गाँव में, हमारे घर में, हमारे माँ-बाप को, हमारे बुजुर्गों को क्या प्रॉब्लम है, उनको चलने में दिक्कत है, हमारे घर में प्रॉब्लम है या हमारे देश में प्रॉब्लम है, उसकी ज़िम्मेदारी कोई बाहर के आकर नहीं लेगा, नहीं लेगा। प्रधानमंत्री भी नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी या कोई भी लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऐसा थिंकिंग हमें अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हमें चाहिए कि अपने देश में ही रह के उस चीज़ को हम सोल्व करें। और सोल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन छिपा होता है। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अगर आती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में आती है या देश में आती है, तो उस प्रॉब्लम के साथ-साथ में उसका सॉल्यूशन भी उसके अंदर छिपा होता है, बट हम देख नहीं पाते। जैसे इंसान खुद को नहीं देख पाता कि हमारे अंदर जो पावर है, वो हम खुद नहीं देख पाते, क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर ही वो खुद की पावर को दबा के रखा है। अगर हम उसको खोजेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन छुपा होता है। अगर हम उसको सर्च करेंगे, खोजेंगे, उसको हम ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सर ये एक सब क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, किसी ने पूछा है, सर आप एक जॉइंट सिर्फ फर्स्ट ट्राई किए थे ना, या और भी बहुत सारे जॉइंट्स ट्राई किए आपने? मतलब किस तरह से, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट, बहुत सारे टाइप्स के नी जॉइंट आते हैं, तो आपने सिर्फ एक ही जॉइंट ट्राई किया था या अलग अलग टाइप के जॉइंट्स ट्राई किए हैं? ये किसी ने पूछा है सर। देखो, आईटी में आने से पहले तो मैंने एक नॉर्मली हूँ, आज भी नॉर्मल हूँ, नॉर्मल परिवार से हूँ। तो मैं तो या हमारे जैसे लाखों लोग हैं, वो एनजीओ में या गवर्नमेंट बॉडी में जाएँगे तो उनको डोरब्लॉक कैलिपर मिलेगा, ठीक है ना? फिर हमने आईटी में आए, फिर हमने देखा कि भई सर्च किया हमने कि और भी बहुत सारे तरह के जॉइंट होते हैं। जॉइंट होते हैं, बट जो हमारे 80% लोगों को जो जनता है, जो वहाँ पर जाती है, वो एनजीओ और गवर्नमेंट बॉडी में, वहाँ पर आज भी वो नॉर्मल कैलिपर ही मिलता है। तो इसलिए वहाँ वहाँ पर भी एक डायनेमिक मूवमेंट वाला, एक अच्छी क्वालिटी वाला कैलिपर पहुँचना ज़रूरी है। हमने ट्राई किया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को वो चीज़ आज अभी भी नहीं मिल पाई है, जिसको हम करना चाहते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जिनको आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं। दे हैव मेनी आइडियाज इन देयर माइंड, बहुत सारी उनकी आइडियाज होती है, बट उनको स्टार्टअप में या फिर किसी इसके लिए कैसे चेंज कर सकते हैं, यस, इसके बारे में आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? यस, यस। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले हर इंसान को अपना टैलेंट पहचानना चाहिए। जैसे मेरा टैलेंट ये है कि मुझे गॉड गिफ्ट है कि मुझको नई-नई चीज़ें, आइडिया आते हैं, मैं उनको डायरी में लिखता हूँ, और फीलिंग आती है कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो सब चीज़ें मैं लिखता हूँ। तो ऐसे ही हमारे देश में भी जो है, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनको अपनी नीड, अपनी जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उनको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर क्या नीड है और क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है ना? क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि कोई एंटरप्रेन्योर बनने का, ऐसा कोई इरादा नहीं था।
बट एक प्रॉब्लम थी कि जो मुझको सॉल्व करनी थी, और मैं सॉल्व करने उसके चक्कर में लगा हुआ हूँ कि भाई एक नॉर्मल और एक अच्छा, एक सस्ता एक कैलिपर वो हमारे देश को पहुँचे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्टेप बाय चढ़ते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ आती हैं, मंजिल एक दिन में नहीं मिल पाती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार एंटरप्रेन्योर बनने में तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, वो वास्तव में चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई बहुत सारा पैसा चाहिए, वो चाहिए, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है, ठीक है ना? क्योंकि मैं जब मुंबई आया था, ये जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास में जिम में पैसे नहीं थे। मैं आया और मैंने काम स्टार्ट किया। तो जब आप भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, एमजीएम में हो, तो आप अगर कोई इन्वेंशन बनाते हैं तो आप उस चीज़ को लेके आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपके गुरु हैं, आपके एमजीएम के जो भी हैं टीचर हैं या आपके मेंटर हैं, उनको लेके आप उस चीज़ को, प्रोजेक्ट को आगे डालो। बायरेक है, जैसे मैंने बताया कि हमको बीआईजी ग्रांट मिला। बायरेक जो है भारत सरकार का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जो ये मेडिकल डिवाइस को और एग्रीटेक जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और उससे अदर भी हमारे इंडिया में और बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो नए नए आइडिया को ग्रांट देते हैं, जो आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे, आपको जो देंगे वो उस चीज़ से आप आगे बढ़ो। तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं कि आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि भई इसके लिए हमें बहुत सारा ये चाहिए, वो चाहिए, हम फेल हो जाएँगे। फेल होता है इंसान, लेकिन आप कोशिश करो बार-बार। इन्वेंशन भी फेल होता है, आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी फेल हो सकता है, पैसे की कमी पड़ सकती है, लेकिन आप कोशिश करो। तो कोई भी सर, जी। और एक स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन पूछना है। मिस आफरा खत्री, she has Good raised her morning. hand. Yes, hand. Myself Afra Khatri. I'm an intern from MGMI UDPO. सर मुझे ये पूछना था आपसे कि KFOs जो आपने डेवलप एंड डिजाइन किया है, सर उसकी क्राइटेरियाज क्या है फॉर फिटिंग द KFOs? पेशेंट को फिट करने की क्राइटेरियाज क्या है आपके? क्राइटेरिया वही है कि जो एक पीएनडो जो क्राइटेरिया लगाता है वही हम पीएनडो के साथ मिलकर करते हैं कि पीएनडो के साथ मिलकर मेजरमेंट लेते हैं, फिर वो उस चीज़ का जो है मोल्ड बनाते हैं, और जो हमारे पास में जो नी जॉइंट है उस नी जॉइंट को फिट करते हैं, और फिर उनको एक बार हम बुलाते हैं, उनको पहना के दिखाते हैं। अगर उनको फिट आ रहा है तो फिर उनको हम उसमें रिविट मार कर उसको फिट करते हैं। तो इसमें 2-3 टाइम प्रोसेस होता है और हमारे एसओपी बनी हुई हैं, ठीक है ना? उस तरह से, क्योंकि ये चीज़ मेडिकल डिवाइस है तो जो पीएनडो एक्सपर्ट है उसके साथ में ही ये सब लेके चलते हैं। और सर क्या हम कोई और नी जॉइंट भी यूज कर सकते हैं ये KFOs में? यस, कोई जैसे दिक्कत डिफरेंट नहीं। ऑप्शंस है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, देखो मोलिटी इंडिया ने बनाया है, वहाँ पर ऐसा एक मतलब थाई के पास में एक वायर लगा हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं, अभी इंडिया में भी 1-2 लोग और 2-4 लोग काम कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर में तो देखो जो लोग पैसे वाले हैं वो तो ले सकते हैं, बिल्कुल 20,000 का ले सकते हैं, लेकिन 80% जनता अभी भी ऐसी है जो 20,000 का नहीं ले सकती। तो कोई भी इन्वेंशन है आप कीजिए और आगे बढ़िए, आपको हेल्प मिलेगी, हर तरह से हेल्प मिलेगी। जी। Jyoti Chaudhary, Thank you, madam, sir. Dr. Jyoti Chaudhary from nursing faculty. She wants to ask something. Yes, madam. Dr. Jyoti Chaudhary, ma'am. No issues. I think connection, she is not connected. No issues. Thank you very much, sir, for your all motivational story, which is, I think, it has really inspired our all the students. Chat box में भी बहुत सारे लोगों ने feedback दिया है that really they have inspired by your story, and hats off to you for your all efforts and towards your new invention. I would like to call upon our honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Shashank D. Dalvi, sir. Sir, please, can you? Yes. Thank you. Good morning to all. नमस्कार। Dr. Raman Yadav, Dr. Uttara Deshmukh,
today's speaker, Mr. Anish Karma, who is also the organization Amish Technology and your associates. I have seen that particularly, and all the participants. Really nice justice, and the speaker in the your related field you have called the story and the efforts taken by Karmaji are very, very useful and guiding to everyone, each one of us. The one thing that he has mentioned that is very, very true. That is the problem and the solution. These are very much related. In every problem, there is solution with that problem only. So where the understanding of the problem is very, very important. So whatever the movement problems are there, that we have to understand, then only the problem for bringing that movement to the normal, that solutions that can be taken off. And I am very happy that the work that you have done and the clinically unmet needs that you have calculated in this particular area, we are also interested in doing the field work, your social attachment, and जो मिट्टी से आप आए उससे जो आप जुड़े हुए हो, that has really impressed me a lot. So thank you for everything. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you, Thank sir. you very much, sir, for your Yes. remarks. Thank you so much. Now, I would like to call upon Dr. Ravi Parela, faculty from Prosthetics and Orthotics unit, to give concluding remarks. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ रवि बारेला। आज मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज मुझे एमजीएम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स की ओर से आज सभी को धन्यवाद कहने का मौका मिला। मैं माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर शशांक अली सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने आज बहुमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, और रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर सबिता राम मैडम को अपने दिनचर्या से समय निकाल के इसमें अपनी उपस्थिति दिखाई, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और एमजीएम आईएचएस के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल गवर्नर डॉक्टर रमन पी यादव सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता। हेलो, Yes, Ravi, you are audible. Yes. मेंबर ऑफ आईआईसी डॉक्टर रीता खड़कीकर मैडम और डॉक्टर सविता मौर्य मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही साथ इसके एक बड़े समारोह का हिस्सा बनने के लिए मैं हमारे प्रबंधक समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ बाहरी आमंत्रित मिस्टर बेकी थॉमस और अनिश कर्मा सर जी को सूचनात्मक प्रेरक भाषण देने के लिए पूरे मन से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे भविष्य के को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, और साथ ही इस तरह के बड़े समारोह का आयोजन करने और हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए डॉक्टर उत्तराध्यक्ष मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी विश्वविद्यालय के विभाग के सदस्य एवं पीएचडी एमएससी और हमारे प्रोफेसर ऑर्थोटिक्स छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिरी आईटी डिपार्टमेंट मिस्टर अनिल खंडारी सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you very much, Ravi, for your concluding remarks. Now we will stand for the national anthem.
Now you can start from your place. Right, Uttara. Yes, Yeah. sir. Due to some technical issues, I mean, there was little bit no network for few minutes. So we have just, yes, sir. Uttara. Good afternoon, sir. There is a little problem in technical problem here. There is no network in the basement section. So I will just. Why not you start from your place? Yes, sir. That's what I'm trying. I will just sing the national anthem because connection is not possible right now. Okay, so listen. Yes, sir. Can the Harshita can start from here? Yes, sir. Sure, please, if possible. Sir, is it possible from Harshita's side? Host कर. Make Harshita host. Sir, no issues. I think because we are not able to make the other Harshita host also. No. Just Suddenly, all the network has dropped down. I don't know. Geo network. Everyone's network is gone. it is already played, madam. It is already played. Hello. Hello. Yes, sir. Sir, instead of playing, we will sing. Is it fine, sir?
Good afternoon, everyone. Sorry for the inconvenience caused due to the network issues, as we are placed in basement and I don't know what is the technical problems we are facing. So I appeal all the attendees to stand and we will sing together the national anthem. I appeal all the participants to sing with me. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय Thank you so much everyone for joining and making this webinar successful. Thank you so much.